Good evening, everyone. I am Dr. Nupur Gupta, practicing obstetrics and gynecology in Gurgaon from Well Women Clinic as well as Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Today, we are going to talk about a very important topic, which is the right posture during pregnancy. To know that what is the right posture and how you can avoid the aches and pains that you suffer during pregnancy, we have invited today Dr. Neetu Rathi. Welcome, Dr. Neetu. Thank you, ma'am. So, Dr. Neetu is the founder, Rid of Pain Physiotherapy. She is Masters in Physiotherapy in Neurological Conditions with an experience of more than 10 years, and also has done a certified course in kinesio tapping, myokinetic cupping, dry needling, advanced manual therapy, osteopathy, and chiropractic techniques. She is an ergonomist as well. So, coming back to the topic, what is the right posture during pregnancy? So, it is very important to know that what is your posture and how you can improve it. Because posture, what do we mean actually by posture? It is the position in which you hold your body while standing, sitting, lying down. And if you have a good posture and if you train your body to stand in the right manner, to sit in the right manner, to walk in the right manner, it will produce very less strain on your back. And as your pregnancy progresses, your everyday activities like sitting, standing will not become uncomfortable. So, if you have a good posture during pregnancy and if you continue to do the pregnancy exercises that have been supervised by your physiotherapist, then you will avoid those aches and pains that are related to increasing baby bump. So, welcome back again, Dr. Neetu. Let us start today's session. So, what are these postural disorders that we see during pregnancy? Actually, postural disorders are the problems that are due to diversion of the alignment of our body. Basically, in pregnancy, body posture is divert from the normal alignments, like because of baby bump, हम shoulders आगे की तरफ slouch कर जाता है, बैक थोड़ा अंदर की तरफ hyperlordotic curve में चला जाता है. So these are the postural disorders that happens and during the pregnancy period, and because of that like foot flat भी हो जाता है क्योंकि arching कम हो जाती है. तो these are counted in postural disorders. So, in postural disorders से क्या प्रॉब्लम आती है प्रेग्नेंट वुमेन को? एक्चुअली जब पोस्चरल डिसऑर्डर्स होते हैं तो ये हमारी बॉडी अलाइनमेंट जब चेंज होती है तो उसकी वजह से वेरियस पार्ट्स में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आती है जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें डिस्टर्ब करती है. तो डॉक्टर नीतू, कई बार अगर पोस्चर सही ना हो तो बहुत लोग सफर करते हैं ड्यू टू बैक पेन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर. जी तो ये जी आप भी काफी कॉमनली देखते होंगे और बहुत लोग आपके पास आते होंगे विद सफरिंग फ्रॉम बैक एक. जी जी सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज बिल्कुल मैम. प्रॉब्लम्स? एक्चुअली अगर हम अपनी अर्गोनॉमिकली अपना पोस्चर की अलाइनमेंट को प्रॉपर रखें, केयरफुली हर चीज को फॉलो करें, तो हम इन चीजों को काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं कि ये हमें बहुत ज्यादा बोदर ना करें. लाइक इन केस हमारा सिटिंग का है पोस्चर, स्टैंडिंग का है, स्लीपिंग पोस्चर है. बेसिकली वर्किंग वुमेन को थोड़ा ज्यादा इशू रहता है क्योंकि उनका लॉन्ग सिटिंग रहता है, ड्राइविंग का इशू रहता है, और किचन में लेडीज का काम करते टाइम उनका लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन होता है. तो ये सारी चीजें मिल करके उनको ये बैक पेन, नेक पेन और ये सारे इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं. तो इस केस में ये पोस्चरल डिसऑर्डर्स हमें अफेक्ट कर जाते हैं. तो हम एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट स्टैंडिंग, व्हाट इज द राइट वे टू जी स्टैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एक्चुअली अगर हमें ज्यादा देर के लिए खड़े होना पड़ता है तो हमें सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ज्यादा देर तक हम खड़े ना रहें. हमें फ्रिक्वेंट ब्रेक्स लेना चाहिए, लाइक हर 30 मिनट्स के बाद या तो वॉक कर लें या अपना जैसे कि
एक पैर को रेस्ट दे दिया एक छोटा सा स्टेप पर रख करके, दूसरे पैर के ऊपर लोड थोड़ा कम होगा, इस तरीके से हम अपना किचन में काम करते हुए या जिनका स्टैंडिंग वर्क प्लेस है वहां भी हम ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो वो एक बेटर वे है कि ज्यादा देर तक खड़े रहने में आपको बैक पे स्ट्रेस नहीं रहता और लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ईयर लोब शोल्डर के मिडवे से होना चाहिए, शोल्डर्स सीधे हो, ना कि आगे की तरफ झुके हुए हों। और पेल्विस हमारा एंटीरियरली टिल्टेड ना हो, उसके लिए हमें अपने आप को बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट, इनका इशू थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, तो अगर हम बोलते हैं कि राइट पोस्चर स्टैंडिंग के लिए है, तो ऐसे ही राइट पोस्चर सिटिंग के लिए भी होता है। तो क्या पोस्चर ठीक बिल्कुल। रहता है जब ये लोग बैठते हैं? तो व्हाट इज द बेस्ट वे जब टू बैठने का हाँ बैठने के पोस्चर में मैम बेसिकली कि जब ज्यादा देर के लिए बैठना हो तो वही एक सेम पैटर्न फॉलो होता है कि आपको 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना ही चाहिए, क्योंकि एक पोस्चर में बैठे बैठे हमारी बॉडी की टायर्डनेस बढ़ जाती है और हमारा बैक पेन और नेक पेन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उस केस में भी हर 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लें। अगर हमारा जैसे वर्किंग प्लेस है, हमें हमारी 9 to 5 की जॉब है या वर्क आवर्स ज्यादा हैं, उस केस में भी आपको फ्रिक्वेंट ब्रेक्स लें। दूसरा, जब आप चेयर पे बैठे हैं तो बैक रेस्ट हो आपकी चेयर में कि एक छोटा सा कुशन या फिर एक पिलो हो जो आपकी बैक को सपोर्ट करे। और दूसरा, वर्क प्लेस है तो वो आपको अर्गोनॉमिकली हेल्पफुल हो, जिसमें आपकी जो टेबल है वो आपकी बॉडी के नियरेस्ट हो, ताकि आपकी आर्म्स प्रॉपरली रेस्टेड पोजीशन में रहें आपकी चेयर पे, और आपका आई जो है बिल्कुल स्क्रीन के इन फ्रंट में हो, ना ही आपको इंक्लाइन करना पड़े उसको ऊपर की तरफ और ना ही डाउनवर्ड आप आईज को ज्यादा झुकाना पड़े। तो आपका बिल्कुल पोस्चर इस तरीके से हो कि यू फील कंफर्टेबल वाइल सिटिंग ऑन द चेयर। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हम बैठते हैं ज्यादा देर के लिए लाइक ऑफिस में, तो बेटर है एक छोटा सा स्टेपर रख लें जिसपे फुट प्रॉपरली रेस्टेड पोजीशन में हो, जिससे कि पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम लेडीज को ना फील हो प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ। जी। तो जैसा डॉक्टर नीतू ने बताया कि अगर हमारा पोस्चर राइट नहीं है, चाहे वो हेड एंड नेक का पोस्चर है, चाहे वो आपके बैक का पोस्चर है या आपके पेल्विस का पोस्चर है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक या पेन होगा ही। जैसे कि अगर जी। हेड हेड का पोस्चर अगर ठीक नहीं है तो यहाँ पे नेक में पेन हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं अबाउट बिल्कुल। हेडेक। कई बार शोल्डर पेन भी होने लगता है, क्योंकि बहुत देर तक अगर कंप्यूटर या स्क्रीन के सामने रहते हैं। और अगर जी। पेल्विस टिल्ट होता है, अगर राइट पोस्चर नहीं हो, तो बैक एक जो हम देखते हैं इन अ डेली लाइफ, लॉट ऑफ लोअर बैक एक, और कई बार पेल्विक पेन भी काफी रहता है डॉक्टर नीतू। जी। जी। तो और कुछ लेडीज में जब यूट्रस की जो ग्रोथ है, अगर वो ऑब्लिक है या अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो कई बार लेग्स में भी इरिटेशन की वजह से शियाटिका जैसा पेन भी कुछ जी। लेडीज में फील होता ही है। हम्म। तो राइट पोस्चर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एंड वी शुड सीक सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रीनेटल फिजियोथेरेपिस्ट हु कैन गाइड, कि इसी पोस्चर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब एक्सपेक्टेंट मदर्स ड्राइव करती हैं, तो उसके लिए क्या राइट पोस्चर होना चाहिए ड्यूरिंग ड्राइविंग? वही सेम जैसे कि हमारा लॉन्ग सिटिंग का पोस्चर हमें मेंटेन करके रखना होता है, लाइक वाइल ड्राइविंग हमारा बैक फुली सपोर्टेड हो अपना सीट पे, और बैक रेस्ट हो। और दूसरा, हमारा जो नीज और हिप्स का है अलाइनमेंट इन स्ट्रेट वे हो, कि ना ही तो आपको बहुत ज्यादा सीट के अंदर जाना पड़े, ताकि आपके नीज और हिप जॉइंट में थोड़ा सा रहे प्रॉब्लम। तो वो केस आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपने जैसे अभी बताया कि sciatica के पेन आता है, वो इसी वजह से आता है कि आपका ड्राइविंग के टाइम पे आपका सीट कंफर्टेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से मसल स्टिफनेस बढ़ जाती है, जो कि नर्व कंप्रेशन करती है।
हम्म, दूसरा एक ये रहता है कि जो फुट आपकी प्रॉपरली हम्म, लाइक उस पे सपोर्टेड हो, आप ज्यादा ऊपर नीचे आपको बैलेंस का और वो इशू ना हो कि आपका जब गियर पे है या फिर आपका ब्रेक पे पैर है तो वो कंफर्टेबली रेस्टेड पोजीशन में हो। दूसरा, ड्राइविंग के टाइम पे जो हमारा हम्म, अ, रहता है कि हमें ड्राइव करते टाइम आपका बॉडी उसके साथ इतना ज्यादा भी टच ना करे कि वो आपके हम्म, एब्डोमेन को टच करे स्टेयरिंग। तो वो एडजस्टेबल हाइट पे हो कि आपको उसमें ज्यादा कंफर्ट रहे। हम्म, तो इसके अलावा जो सीट बेल्ट है जो आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया को कवर करती है, वो हम्म, थोड़ा सा नीचे से हो जो कि आपके हिप को हम्म, पूरा सपोर्टेड करते हुए जाए। हम्म, आपको कोई दिक्कत ना हो इन केस सडन ब्रेक लगाना पड़े या कुछ और इशू रहे, उस हम्म, केस में जितना कंफर्टेबल रहे उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हाउ टू अप्लाई सीट बेल्ट इवन इफ यू आर ड्राइविंग और यू आर नॉट ड्राइविंग। तो हम्म। सीट बेल्ट सही तरीके से लगाने से झटका भी कम लगेगा और डर भी कम लगेगा एंड इट जी विल बी सेफ एज लॉन्ग एज यू आर ड्राइविंग। जी जी। तो अगर हम कुछ भी सामान या ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने की बात करते हैं तो हम्म। वो कैसे उठाना चाहिए? इज देयर एनी स्पेशल टेक्निक बाय विच दे बिल्कुल। शुड बी लिफ्टिंग, या कैसे भी उठा सकते हैं? नहीं मैम, ये चीज थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की रहती है क्योंकि अगर हम वेट लिफ्ट करते हैं हम्म, उस केस में हमारी बैक इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इन केस हम्म, अगर हम हमारी लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं है। तो जैसा कि है कि अगर हमें वेट लिफ्ट करना है तो हमें बैक को बेंड नहीं करना है। हम्म, उस केस में बेटर है हम अपनी नीज को बेंड करें। वेट हम्म, को जितना हम हमारी बॉडी के क्लोज लेके आए उतना ज्यादा अच्छा है, हम्म, ताकि वेट लिफ्ट करने में हमें इजी और कंफर्टेबल रहे। हम्म, नेक्स्ट चीज ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन को अगर वेट लिफ्ट करना पड़ता है तो उन्हें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि 20 पाउंड से ज्यादा का वो वेट लिफ्ट ना करें। हम्म, और अगर ये चीजें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनको बैक पेन या बैक इंजर्ड होने के चांसेस काफी कम रह जाते हैं हम्म, इन केस अगर वेट लिफ्ट करना हो। और बहुत बार मदर्स का या टू बी मॉम्स का ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि हाउ शुड दे स्लीप एंड हम्म। व्हाट इज द राइट पोस्चर ड्यूरिंग स्लीपिंग और व्हेन दे आर लाइंग डाउन। तो उसमें आप एक्चुअली क्या एडवाइस देना हाँ जी, चाहेंगे? स्लीपिंग का ये है कि ये हर किसी के लिए मैटर करता है। आपके लिए हम्म, स्लीपिंग पोस्चर वही बेटर है जिसमें आप कंफर्टेबल फील हम्म, करते हैं। और जब बात आ जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की तो उस केस में ये चीज और भी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज हम्म, उन्हें ज्यादा रेस्ट और स्लीप की जरूरत होती है। तो उस हम्म, केस में बेस्ट वे है कि आप जो आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है आप उसमें हम्म, सोइए। और आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सीधा सो सकते हम्म, हैं। और एज पर एडवाइजेबल आप सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कोशिश कीजिए कि आप सीधा ना सोएं, क्योंकि उस केस में हमारा एब्डोमेन का और बेबी का जो प्रेशर या वेट रहता है वो सारा बैक की तरफ रहता है। उस केस में हमारा विना कावा पूरा कंप्रेस होने का चांस होता है जो हमें फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर हम्म, सकता है। तो उस केस में बेस्ट है कि आप साइड लाइन में सोए, चाहे वो आपके राइट में हो या फिर आपके लेफ्ट में हो। हम्म। हाँ, तो हम भी और यही एडवाइस करते हैं कि कोई भी साइड में सो सकते हैं विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू, और हम्म, नीज स्लाइटली बेंड रखें। बिल्कुल। और नी के बीच में कभी कभी आप पिलो भी लगा सकते हो। वैसे आजकल पिलोज भी अवेलेबल है ऑन अमेजोन वेर यू कैन बाय जी कि जी। टू हैव द राइट posture while sleeping, and this will make a lot of difference as हम्म far हम्म, as your backache or any other ache हम्म, is concerned. जी। तो और इस केस हम्म, में एक और हाँ, चीज मैं ऐड करना हम्म, चाहूंगी मैम। अगर जैसे साइड लाइन में भी सोते हैं हम्म, तो नेक के नीचे भी जो हम पिलो रखते हैं वो पतला सा हो, वो सिर्फ नेक के अंडर रहे, शोल्डर के नीचे हम्म, ना आए, तो वो ज्यादा हम्म, कंफर्टेबल रहेगा। बाकी रेस्टिंग हम्म, पोजीशन जो भी कंफर्टेबल हो वो ज्यादा बेटर रहती है। अच्छा। तो जी। डॉक्टर नीतू ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। सबसे पहले कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, या प्रोलॉन्ग सिटिंग इन द सेम पोजीशन बहुत लंबे टाइम नहीं होनी चाहिए, या हम्म फिर बार बार आपको नीचे जब झुकना पड़ता है कोई भी चीज के लिए, या आपका पहला कोई बेबी है जिसको आपको उठाना है, या कोई भी और चीज है उठाने के लिए, तो आपको नी बेंड करनी है रादर देन योर बैक।
क्योंकि बैक इंजरी को हमें अवॉइड करना है, तो बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है उस टाइम पर। और जो हील पेन या फिर फुट पेन या एंकल पेन जो होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसमें मैम बेसिकली हम्म, सबसे बेटर ये रहता है कि हमें बिल्कुल फ्लैट फुटवियर नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हम्म, आर्च ऑलरेडी कम हो जाती है हम्म, बिकॉज ऑफ वेट गेन। हम्म, अगर हमें हील पहननी है तो स्लाइट हील होनी चाहिए। इस केस में हम्म, एडवाइजेबल है कि हल्की सी हील हो, हम्म, बट हील्स अवॉइड करनी चाहिए, जो हम्म, कि ज्यादा बेटर वे है। बट हम्म, बिल्कुल फ्लैट भी ना पहने, हील्स भी ना पहने, हल्की हम्म, सी हील होनी चाहिए पेशेंट के लिए, हम्म, ताकि वो उसकी आर्चिंग को मेंटेन करके रखे। या फिर ऐसे फुटवियर हो जो उसकी आर्च को हम्म, पूरा सपोर्ट करते हो फुट की, तो हम्म, उस केस में कंफर्टेबल शूज ज्यादा बेटर रहते हैं, लाइक हम्म, स्पोर्ट शूज। हम्म, और जिसमें फुट पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो चलने में, जिसमें कंफर्टेबल भी हो, और वॉकिंग लॉन्ग वॉकिंग हो या कुछ ज्यादा देर तक फुटवियर पहनना पड़े, तो हम्म, केस में भी कि पैरों में दर्द ना हो, आप कंफर्टेबल रहें, हील हम्म, पेन ना हो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो वेरी राइटली पुट। तो राइट पोस्चर रखने के लिए, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वेदर वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, वेदर वी आर वर्किंग इन किचन, या आपका डेस्क जॉब है, बट इट हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टेकिंग अ ब्रेक एंड नॉट बी इन द सेम पोजिशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। चाहे आपको बैठने का काम हो, चाहे आपको वॉक करने का काम हो, या वॉट एवर काइंड, बट तो what kind of stretches do you recommend in between? एक्चुअली जब भी ज्यादा देर के लिए हो तो बेटर है, अगर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग है, लॉन्ग सिटिंग है, हम्म, उस केस में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर आधे घंटे में ब्रेक लेना चाहिए। आप हम्म, मूव करो, पोस्चर को चेंज करो, लाइक अगर हम्म, आपका सिटिंग है थोड़ा सा वॉक कर लो, स्टैंडिंग है हम्म, तो भी थोड़ा सा इधर उधर वॉक कर लो, ताकि आपकी हम्म, बॉडी को रिलैक्सेशन हो और आपको रेस्ट हम्म, मिले। हम्म, हम्म, दूसरा है कि साइडवेज आप खुद को स्ट्रेच हम्म, करो, आर्म्स को स्ट्रेच करो, हम्म, शोल्डर्स की मूवमेंट कर सकते हैं, हम्म, लाइक इस तरीके से राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम्म, सो हमारा जो शोल्डर्स और नेक का वो प्रॉब्लम है, लाइक कि स्ट्रेस रहता है, वो कम हम्म, हो जाता है। और बैक के लिए भी हम साइडवेज हल्का सा स्ट्रेच कर हम्म। सकते हैं बजाय की रोटेशन के, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। अच्छा। जी। तो बहुत सी प्रेगनेंसी में लोगों को बैक एक होता है, और हम्म, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट यस, हम्म, वन ऑफ देम इज द रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग हम्म, प्रेगनेंसी। सो एनी ऑफ यू जिसको भी बहुत बैकएक है एंड यू आर नॉट एबल टू लुक एट कि व्हाट इज द रीजन, या हम्म, फिर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कई बार जो प्रेगनेंसी के हार्मोन है जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उससे हम्म, भी मसल्स या जो लिगामेंट्स हैं ये सब लैक्स हो जाते हैं, दैट आल्सो कॉजेज मोर बैकएक। पर फिर जी। भी डॉक्टर नीतू हैज शेयर्ड टिप्स ऑन how you can avoid this, because pregnancy is a long duration, and when हम्म, you have to stand, keep your feet slightly apart, knee को lock ना करें, और हम्म, keep moving. So best thing is to keep moving so that your posture keeps changing, और आपको एक ही पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक ना हम्म, रहना पड़े। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और यही चीज़ जब आप ऑफिस में हैं, तो जो ऑफिस में बैठते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, चाहे वो प्रेगनेंसी के लिए हो चाहे वो नॉन प्रेगनेंसी के लिए हो, बट दे ऑल्सो सफर फ्रॉम बैकएक व्हेन दे हैव prolonged sitting in office. So Dr. Neetu is also an ergonomist, and she can help you relieve your back pain if we are not able to find any other reasons, and pregnancy is the only cause. हम्म, So one visit to her is not bad. Either it can be online or you can visit her. Dr. Neetu is based in Gurgaon, हम्म, and she will be able to solve not only your backache problems but any other aches and pains which can be solved by physiotherapy. That means she will help you strengthen your muscles. Is हम्म। this right, Dr. Neetu? या श्योर मैम, Ah, डेफिनेटली वी so कैन। she will not offer you any other physiotherapy treatment for pain relief, but muscle strengthening will work, which in the long run will also prevent your aches and pains after delivery. So thank you so much, Dr. Neetu, for sharing your valuable time and inputs for expectant moms, and see you soon, sometime again.
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।